ایمان کی بات یہ ہے کہ ایمان بچانے کے لیے آئے ہیں. تو لوگوں میں جھجک ہوتی ہے. تھی سبحان اللہ نہیں آخنا. میں تو نہیں کہاں گا بھی سینے والا زور لا کے مدینے پہنچ جائے. نہیں, مطلب اگر واقعی پہنچ گیا تو کی کریں گے نا. مطلب 11:30 تک جو بندہ فلم دیکھتا رہے پھر بور نہیں ہوتا. ایتھے تو مسئلہ ہے نا, سانوں مسائل نے نا, پریشان ہو جائیں گے. تھی نہیں سبحان اللہ نہیں کہنا, لیکن میں تھوڑے والوں کہہ رہا بھی اسی ادھروں آئندہ کمانا بھی نہیں. اس پہ زور نہ لگایا جائے, جھجک ہوتی ہے, نہیں کہا جاتا. کیا بات ہے. دیکھو نا, نبی کے نام پہ بندہ بول پڑے تو یہ لکھا گیا بھی حضور کے نام پہ بولے اسی. سبحان اللہ. جی لکھا جائے گا, کو ہاتھ اٹھ گیا نا اگر, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یاسین ہے نا جی, منہ بند ہو جائیں گے, مہر لگ جائے گی کچھ دیر کے لیے. ہاتھ بولیں گے نا جی, قدم بولیں گے نا, راستے بولیں گے, ذرہ ذرہ بولے گا. وہاں اگر یہ آ گیا کہ نبی کے نام پہ ہاتھ بلند کیا تھا, اگر یہ آ گیا کہ ہم نے نعرے کا جواب دیا تھا, حضور کے نام پہ مچلے تھے, پکڑے گئے, تو پھر کیا بنے گا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو جو قبلہ مفتی صاحب محمد امین صاحب جو فرما رہے تھے نا, اس میں دعوت فکر میں اس طرف کے لیے بھی یہ کہنے لگا ہوں کہ مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو کہیں اس میں ہمارا بھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کہیں ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے مسجدیں خالی ہو رہی ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس داخلے والا رجسٹر جو ہے نا وہ گم ہو گیا ہے, صرف خارجہ رہ گیا ہے. جیسے پاکستان کا وزیر خارجہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہی بن جاتا ہے تو پھر نکالتا ہی رہتا ہے, داخلے والا رجسٹر کہیں گم ہو گیا ہے. بھئی ہم تو السلام علیکم بھی پگڑی دیکھ کے کہتے ہیں. ابھی آپ نے سنا میرے آقا نے فرمایا تو جانتا ہے یا نہیں جانتا, اگر مصطفیٰ سے محبت ہے تو سیرت یہ ہے, تو بندے کو نہیں جانتا, سامنے آیا تو سلام بولنا اس کو. میں کہتا ہوں پگڑی دیکھ کے بولوں گا, میں ٹوپی دیکھ کے بولوں گا, میں اس کا یہ لباس دیکھ کے بولوں گا. حضور فرماتے ہیں نہیں, وہ ہو سکتا ہے تو سلام کہے وہ جواب دے دے, تیرے سلام کی یہ جو دعا ہے نا سلام کی والی, وہ اگر نہیں بھی ہے تو اللہ اس پہ مہربانی فرما دے, وہ جس کو ہو جائے. تو ہم نے تو سلام کے لیے بھی آج یہ کیا ہے کہ پہلے میں اس کو دیکھوں گا, میں اس کو دیکھوں گا, میں اس کو دیکھوں گا, اس کے بعد سلام کہوں گا. تھوڑا تھوڑا بدلیں اپنے آپ کو, کچھ بدلیں. عزتیں پگڑیوں سے نہیں ملا کرتی, عزتیں جبوں سے نہیں ملا کرتی, عزتیں جناب کسی سجادہ نشینی سے نہیں ملا کرتی, کسی بڑے منصب پہ بیٹھ کے نہیں ملا کرتی. عزتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ جو آیا مبارکہ میں نے پڑھی ہے نا, قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے بڑی گواہی قرآن کی ہے, سب سے بڑی دلیل قرآن ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں, کائنات میں نہ تمہاری کوئی مثل ہے نہ تم کسی کی مثل ہو. تو سمجھو نا کہ بات کیا ہے. بابا جب تک خویلد کی بیٹی ہے نا خدیجہ الکبریٰ, وہ بے مثل نہیں ہے. جب مصطفیٰ کی عقد میں آ گئی ہے وہ مثل ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان. جب تک بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر ہے, وہ صحابیہ ہے, وہ ازواجہ کے مقام پہ نہیں پہنچی ابھی تک, تو تب تک ان کا وہ مرتبہ نہیں ہے. یہ جسم مصطفیٰ کی برکت ہے, یہ بستر مصطفیٰ کی برکت ہے, یہ نسبت مصطفیٰ کی عظمت ہے کہ جب ادھر نسبت ہوئی تو قرآن نے کہا لستن کاحد من النساء. زمانے میں تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے. تو میں تھوڑا سا اس طرح دلانا چاہتا ہوں, ایک سوال کروں کہ حضور علیہ السلام نے کائنات میں وہ کون سا فرد ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا؟ یہ میں ادھر سوال کرتا ہوں. خان صاحب سے نہیں کرتا, شاید ہم سے زیادہ ان کو پتا ہوگا, پر اسے یہ نہیں نہ کرتا کہ ان سے یہ پوچھا نہیں جاتا. حضور نے اس کائنات میں جسم بشری کے ساتھ سب سے زیادہ وقت کس بندے کے ساتھ گزارا؟ کس ہستی کے ساتھ گزارا؟ ان سے بھی پہلے کس کے ساتھ گزارا؟
हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के 46 से 47 साल जो है वो किस बंदे के साथ गुजारे हैं। बाबा एक लम्हे की निस्बत जो है वो बेमिसल बना देती है, और जिसके साथ 46 साल गुजारे हैं फिर उसका मर्तबा क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है। और नाम पता क्या है जनाब नाम पता क्या है। अब तक एक बात कही जाती है, हम सैयद आला हज़रत को मानते हैं पर उन्होंने को मानने जिन्हें साढ़े वारिस हों। जिवें असीं हज़रत इकबाल नूं मानने ना अपनी मर्जी नाल, कभी इकबाल मान लेंगे कभी इकबाल मान लेंगे। हजरत इकबाल को कभी हम इकबाल मानते हैं, कभी उसे कलंदर लाहौरी कहते हैं, कभी उसे पाकिस्तान का मुसव्विर कहते हैं कि जी ये मुसव्विर पाकिस्तान है, कभी कुछ और ऐसी बातें करते हैं। जो इकबाल वारे च ना आए तो फिर असीं कहने इकबाल कोई एक। ऐसे ही हम आला हज़रत को मानते हैं। भाई आला हज़रत क्या कहते हैं। आला हज़रत से पूछा गया कि आपने नात सीरीज लिखी है, ये जो कसीदा नूर है उसमें आपने ये कह दिया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुज़ूर ये फरमाइए ना आज शाह साहब ने ना जी इधर तो मैं नहीं कोई कह सकता, तो भावें जिन्ना मर्जी बंदा इधर उधर बह के लड़ते लुड़ते रहते जो फस जान तो उदों ऐस शाह साहब तो बगैर गुजारा नहीं होता। जो फस जान ना मौलाना साहबान खास तौर पर, बल्कि किते किते पीर भी फस जान खुलफाए उसाम, तो फिर ए शाह साहब तो बगैर गुजारा नहीं होता। भावें अपनी मसीते बह के बंदा जो मर्जी उन्होंने आखी रखे। मैं गल नहीं कर रहा, चलो मेरे वर्गा को मातड़ सैयद जड़ा उन्होंने पा लो, ये तो बड़े मोतबर ने ना जी। कि जनाब आला से पूछा गया कि ए जिहड़े अज दे दौर वाले सैयद ने जी तुहाडे हुंदे जिहड़े या बाद विच होणगे भी ओहदे शामिल हैं कि नहीं। आला ने फरमाया क़यामत तक आने वाला सहीहुल नस्ब सैयद जो है वो इसमें शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान वो इसमें शामिल है। और आला हज़रत से हम शुरू हुए तो हुजूर तक पहुंचे। हुजूर ने फरमाया मेरे पूरे नस्ब में कोई जानी नहीं है। दो मोतबर मुफ्ती साहबान तो बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी तायीद फरमाएंगे। हुजूर के पूरे नस्ब में कोई जानी नहीं है, हुजूर के पूरे नस्ब में कोई मुशरिक नहीं है, हुजूर के पूरे नस्ब में कभी कोई काफिर नहीं है। और हुजूर अभी आपने सुना कि यसरब बीमारियों का घर, आजमाइशों का घर, मुसीबतों का घर, भाई जहां जिंदगी गुजारनी मुश्किल है, कदम लगे ना मुस्तफा के तो वो यसरब से बतहा हो जाता है। कदम लगे ना मेरे आका के, वो हुजूर एक कुएं में जो मौत बांटने वाला है, हुजूर पानी का कतरा पिए तो बंदा वहीं पे धुड़क जाता है, मीलों तक पानी नहीं है। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया मेरी तस्बीह लेके आओ, मेरी दस्तार लेके आओ, मेरा जुब्बा लेके आओ, नहीं, मेरे आका ने फरमाया आओ उस कुएं पे चलते हैं। आका कुएं पे गए, पूछ ले हुजूर ने वहां जाके नफल पढ़े हो, हुजूर ने वहां जाके यासीन पढ़ी हो, हुजूर सलाम ने वहां जाके रहमान पढ़ी हो, हुजूर सलाम ने वहां जाके किया गया था। तुम जाओ मैं थे चिल्ला करना दे थोड़े दिनों की मिठा हो जासी। मेरे आका ने क्या किया, हुजूर ने और लुआबे पाक एक कतरा डाला। सुभान अल्लाह। एक कतरा लुआबे पाक का जो है वो कुआं जो मौत बांटने वाला था वो जिंदगी देने वाला बन गया। वो जो बीमारियां बांटने वाला था वो शिफायाबी वाला हो गया। ये एक कतरे की बरकत है, ये एक लम्हे की बरकत है कि यसरब पे कदम लगे। और इससे भी आगे जो मुफ्ती साहब ने शुरू किया था, भाई इब्राहिम मक्के में नहीं आए थे, इस्माइल नहीं आए थे, नूह नहीं आए थे, जनाबे आदम नहीं आए थे, कुल अंबिया नहीं आए, कुल मुरसलीन नहीं आए, उलुल आज़म पैगंबर नहीं आए, वो सारे आते रहे ना। पर ये मुस्तफा की बरकत है। मेरे आका का कदम लगाना जब मक्के की सरजमीन पर
रब ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा बलद। महबूब मक्के को लाई के कसम बनाया तो तेरे कदमों ने बनाया है। महबूब मक्का लाई के कसम बना तो तेरी विलादत की वजह से बना है। आदम से लेके अब्दुल्ला तक अगर ये लाई के कसम बने तू इनकी वजह से नहीं, ये सारे तेरी वजह से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिर जहां हुजूर 40 साल तक रहे हो बंदा काफर दा काफर ही रहा। अल्लाहु अकबर। खुदा का खौफ, जुबान को होश। सईद हसन साहब कहते थे मेरे नाल कोई कहते इनाम रखे लाख रुपया ते मैं उन्हें कट के देना कि बुखारी किनिया रवायतां ज़ईफ़ के मौजूद। बुखारी की एक रिवायत याद रहेगी हमें, वो बाबा देखो ना जिसकी नस्ल में आज भी नूर है, तो देखो ना गौसे आजम। भाई माँ बाप बड़े नेक चाहिए, अब्बा गौसे पाक के लिए ऐसा चाहिए एक सेब खा ले 10 साल तक गोडी करता फिरे। इतना नेक चाहिए कि मेरी बेटी है, आंखों से मारूम है, कानों से मारूम है, बोलने से मारूम है, चलने फिरने से मारूम है, पकड़ने से मारूम है, उसके साथ शादी करोगे कहा जी गुनाह माफ हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो फिर गौसुल आज़म की अम्मा वो नसीब होती हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तो गौसे आज़म मिलते हैं, गौसे आज़म उम्मत को मिलते हैं। गौसे आज़म के लिए ये एहतमाम चाहिए, तो फिर हसनैन के लिए क्या एहतमाम चाहिए होगा। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। फिर हसनैन के लिए क्या एहतमाम चाहिए होगा मुसलमानों। और फिर जिसको हसनैन मिले उसके लिए सैयद आला हज़रत ये कहते हैं आप ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। और जब हसनैन के लिए माँ बाप ऐसे चाहिए तो जरा बता ना फिर अली के लिए माँ बाप कैसे चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। और जिसका नाम लेना इबादत ठहरेगा, जिसको देखना इबादत ठहरेगा, जिसकी बात करना इबादत ठहरेगा, जिसको तसव्वुर में लाना इबादत ठहरेगा, वो जो नस्लों को ततहीर बख्शने वाला होगा, जो मरकज़े तहारत बनेगा। जरा बताना फिर कि उस अली के लिए अब्बा और अम्मा कैसा चाहिए। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। हमने सारा ही जो है वो उधर डाल दिया कि जी बस ठीक है अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। नहीं, ये मेरे आका की इनायत है और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही तो जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। हुजूर ने क्या कुछ किया था, हुजूर ने क्या कुछ किया था। अगर समझ नहीं आती तो कम से कम जुबान बंद तो रखनी चाहिए ना। वो कम से कम एहतराम और अदब का दामन तो हाथों से ना जाने पाए ना, क्योंकि ये जाविया कुरान दे रहा है। बस एक दफा फिर आपको यहाँ लाके ना, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिन मिनन निसा। आज से 150 साल पहले तक, 200 साल लगा लें, इससे ज्यादा नहीं, 200 साल पहले तक जरा मुसन्निफीन को पढ़े ना, सीरत निगारों को पढ़े ना, फुकहा को पढ़े ना, तो क्या रवायतें थी। अजी एक दिन ना हुजूर बड़ा ही रोए हुजूर अल्लाह के सहाबा भी रो गए जी। क्यों? हुजूर ने दुआ की कि या अल्लाह मेहरबानी फरमा चढ़, मैं तेरा नबी है ना, मैं तेरा पैगंबर है ना, ते मेहरबानी फरमा मेरे अब्बे ते अम्मा नूं जिंदा कर दे, मैं उन्होंने कलमा पढ़ा छड़ा। अल्लाह क्या तुझे उनके कलमे की फिक्र है ना। क्योंकि हमारा कलमे का मयार ये है ना कि हम कलमा पढ़ते हैं, वो कलमा हमें बदध्यानती से नहीं रोकता, बेईमानी से नहीं रोकता, झूठ से नहीं रोकता, मिलावट से नहीं रोकता, कम तोलने से नहीं रोकता, कम नापने से नहीं रोकता, कता ताल्लुकी से नहीं रोकता, मस्जिद में जाने के लिए मजबूर नहीं करता, आजान की अहमियत पे हमें हमारा दिल जो है उसको नहीं रखाता। तो ये कलमा तो वाकई उन्होंने नहीं पढ़ा था, ऐसा कलमा उन्होंने नहीं पढ़ा था। उन्होंने पता कैसा कलमा पढ़ा था, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पता कैसा कहा था। हुजूर के वालिदैन ने, वो जिनको हुजूर मिल गए, सुभान अल्लाह, जिनको हुजूर मिले, कितना एहतमाम चाहिए होगा
कैसे अब्दुल्ला की जरूरत थी जिसने मेरे सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन का अब्बा बनना है, सैयदा आमिना सलामुल्लाहि ताला अलैहा जिन्होंने अम्मा बनना है। कायनात में उससे मोतबर कोई औरत हो सकती है? और सैयदा आमिना से मर्तबे वाली कोई और बीबी होती ना तो हुजूर की अम्मा वो होती जो हुजूर की भी अम्मा है। जरा पूछिए, मैं फिर एक दफा तईद लेना चाहूंगा, अमीन साहब भी थोड़ा आलमे इस्तगराक से बाहर तशरीफ लाएंगे और हजरत साहब भी कि जनाब नमाज सिर्फ हम पर फर्ज थी या हुजूर पर भी, रोजे सिर्फ हम पर थे जो हुजूर पर भी, हज ज़कात यानी जो फराइज है ना उम्मत पर, जो चीजें फर्ज हैं वो सरकार पर भी फर्ज थी। उम्मत पर है ही इसलिए फर्ज कि वो सरकार पर भी फर्ज थी। सोचो ना यार, थोड़ा थोड़ा सोच लो, फिर दुआ से पहले ना थोड़ा थोड़ा सोच लो, कहीं ऐसा ना हो युदिल्लु बिही कसीरा, पढ़ते कुरान है पर लेके गुमराहियां जाते हैं, इसलिए कि कुरान को अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, अपने मर्जी के मफहूम व मानी तराशते हैं। ओए बाबा थोड़ा थोड़ा इस पे गौर करो। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेमिसल इसलिए नहीं है, नहीं तो हजरत कारी साहब हमारे शहर के मुअम्मर और बुजुर्ग तरीन आलिम आले सुन्नत व जमात की तरफ से मुफ्ती साहब चले साहबजादा अमार साहब तो मेरे दोस्त भी हैं, तो दोस्तियां दे विच फिर कह ही छड़ देन हजरत किबला शाह साहब और हजरत मुफ्ती साहब, जरा क्या हुजूर की बीवी बनने से पहले भी बीबी आयशा बेमिसल थी? क्या हुजूर की बीवी बनने से पहले भी बीबी हफ्सा बेमिसल थी? बीबी उम्मे हबीबा बेमिसल थी? बीबी मैमूना बेमिसल थी? बीबी उम्मे सलमा बेमिसल थी? बीबी ज़ैनब बेमिसल थी? और नहीं भाई, पहले बेमिसल कोई नहीं थी, बेमिसल तब बनी है जब बेमिसल की कुर्बत नसीब हुई है, तब बेमिसल बनी है। हुजूर ने बेमिसल बना दिया है। और सुनना, जो मुस्तफा को कंधों पे उठाकर गालों में फिरता रहा, शेबे अबी तालिब में फिरता रहा, जिसके बच्चे बिलक रहे हैं, पर वो कहता नहीं तब तक लुकमा नहीं तोड़ना जब तक मेरा मोहम्मद ना आए। ऐ सारा कुछ भतीजा समझ के हो रहा सी। क्या पुत्र भतीजे नू अच्छा तेरा कुछ करने हैं ते इधरों पुत्र नू ना जे शह ना दईए ते पैसे दे के यार बाहर जाके कोई शह खा ला, सामने नहीं हो। लेकिन वहां जाफर है, अकील है, अलीउल मुर्तजा है, उम्मे हनी है, रोटी नहीं मिल रही। कहा जब तक मोहम्मद करीम नहीं आते खबरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था? और भाई ये जनाबे अबू तालिब कर रहे थे, और इसलिए कर रहे थे कि मोहम्मद मेरा भतीजा करके नहीं, मैं देख रहा हूं उसकी शानें क्या हैं। और कभी इस पे भी गौर करना, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का वक्त करीब था ना, 9 चाचे बैठे सन हुजूर दे, 10वें आपके वालिद गिरामी थे। फरमाया मेरी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 9 चाचे बैठे हैं तेरे, तो किसको पसंद करता है? चाचे ने नहीं पूछा तुझी पसंद कर दे हो कि नहीं, सरकार से पूछा था कि तू किसको पसंद करता है। तो ये भी सीरत की किताबों में मिलता है, और शियों की नहीं आले सुन्नत की मिलता है कि हुजूर आगे बढ़े, मेरे आका ने यूं करके अबू तालिब की एंड कर लिया, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब हो गए खुश। और फिर कहा अबू तालिब ये वो अमानत है जो कायनात की सबसे बड़ी अमानत है, जिसकी वजह से हमारे खानदान की इज्जत और तमकनत है, कहीं कमी ना रह जाए। गाजी ने मुकर्रम हुजूर बेमिसल हैं, हुजूर के साथ जो लगता है बेमिसल होता है। सुभान अल्लाह। एक लम्हे को कोई लगे, हम कहते हैं ना जी जिन्हों एक दिन की सहादियत मुयसर आई है, सारी कायनात के औलिया अलियास व अख्ताब मिल जाए तो बराबर नहीं हो सकते। जिसको एक दिन की सोबत मुयसर आ जाए उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। तो जिन्हों 40 साल हुजूर मुयसर रहन हो दे के सारे ही हो सकते। माशाअल्लाह
लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसा, ऐ हुजूर की अज़वाज तुम बेमिसल हो, इसलिए कि हुजूर की अज़वाज हो। तो हुजूर के रिश्ते बेमिसल हैं इसलिए कि हुजूर के रिश्ते हैं, और हुजूर के रिश्ते जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका अदब और एहतराम करने पर हुजूर राजी होंगे, हुजूर खुश होंगे, और हुजूर खुश होंगे तो अल्लाह खुश होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मुबारक मजलिस अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए, और ये मुबारक मजलिस हमारे लिए हुसूल हसनात का बाइस हो और कफ़ार सय्यात हो। व